તો દેશના સૌથી મોટા ન્યૂઝ નેટવર્કને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આપ્યો છે એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુ। વડાપ્રધાને નેટવર્ક 18 સાથેના ઇન્ટરવ્યુમાં અફવા અંગે પોતાનો મત રજૂ કર્યો છે। ન્યૂઝ 18 સાથેના એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યુમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળોને સુરક્ષિત રાખવા અને તેમના મનોબળને ટકાવી રાખવા માટે અફવા જરૂરી છે। વડાપ્રધાને વધુમાં જણાવ્યું છે કે સરકાર પાસે તેના સુરક્ષા દળોને સુરક્ષિત રાખવાના પાવર હોવા જોઈએ, તો જ આપણી પાસે લડવા માટે જુસ્સો હશે। જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી અફવા અને હટાવવું આપણા સૈનિકોને વધસ્તંભ પર ચઢાવવા સમાન છે। હું તેમની સાથે આવું નહીં થવા દઉં। જમ્મુ કાશ્મીરના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં આ એક્ટની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે સરકારે એવું વાતાવરણ ઊભું કરવું જોઈએ જ્યાં અફવાને હટાવતા પહેલા તે બિનજરૂરી રહી જાય। વડાપ્રધાને અરુણાચલ પ્રદેશનું ઉદાહરણ આપ્યું જ્યાં સરકારે એક્ટને આંશિક રીતે પાછું ખેંચી લીધો છે। તેમણે જણાવ્યું કે પહેલા અમે કેટલાક જિલ્લાઓમાં અને તેને પાછું ખેંચ્યો હતો, પછી ત્યારબાદ અમે અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ પાછું ખેંચ્યું। વર્ષ 1980 પછી આ પ્રકારનું પગલું લેનારી અમારી સરકાર પ્રથમ સરકાર છે, પણ અમે કાયદો અને વ્યવસ્થા કાયમ રાખી છે। सिलेक्टिव आप AFSPA को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि AFSPA की जरूरत ही न पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब AFSPA को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं, तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्थे करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है, बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નેટવર્ક 18 સાથેની વાતચીતમાં ભોપાલ આઈટી રેડ અંગે પણ પોતાનો મત રજૂ કર્યો। વડાપ્રધાને મધ્યપ્રદેશના સીએમ કમલનાથને ભ્રષ્ટનાથ કહ્યા। ભોપાલ આઈટીની રેડ પર બોલતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે શું ભ્રષ્ટાચાર સામે કાર્યવાહી ન થવી જોઈએ, કારણ કે ભ્રષ્ટાચારને નાથવો તે અમારી સરકારનો પહેલો મુદ્દો છે। करप्शन पर भी आपने उन पर बहुत उंगली उठाई है पिछले सालों में। करप्शन पर उंगली मैंने नहीं उठाई है, करप्शन हमारा मुद्दा है। अब जैसे कल भोपाल में हुआ, भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए? તો સપા બસપા સાથે ગઠબંધન કરીને ઉત્તર પ્રદેશમાં રાજકારણમાં ફરીથી પગ જમાવવા માંગતી માયાવતી પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મોટો હુમલો કર્યો છે। નેટવર્ક 18 ને આપેલા ખાસ ઇન્ટરવ્યુમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે કે સતત હારના કારણે માયાવતી હતાશ થઈ ગઈ છે। માયાવતી હવે એક ડૂબતી નૌકા છે, તે બચવા માટે મુસલમાનોનો સહારો શોધી રહી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે સતત હાર બાદ આ પ્રકારની જ વાતો થાય છે। માયાવતીની મજબૂરી છે, તો તેણે કેમ પણ કરીને બચવું હશે તો આમ તેમ કરીને વોટ માંગતી રહેશે। નેટવર્ક 18 ને આપેલા ખાસ ઇન્ટરવ્યુમાં પીએમ મોદીએ કથિત સેક્યુલર લોકો પર પણ ગુસ્સો કાઢ્યો હતો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે મારી ચિંતા દેશમાં 24 કલાક સેક્યુલરનો ઝંડો લઈને ફરતા લોકોને લઈને છે। તેમના મોઢા પર તાળું કેમ લાગી ગયું છે? જો આવી જ વાત કોઈએ હિન્દુ સમાજ માટે કહી હોત તો દેશમાં ન જાણે શું થઈ ગયું હોત। એવોર્ડ પરત કરનારા કેટલાક નીકળી પડતા, કેટલી હસ્તાક્ષર અભિયાન શરૂ થઈ જતા। પીએમ મોદીએ કહ્યું કે હવે આ જમાત ચૂપ કેમ છે? તેમણે કહ્યું કે આ જમાત દેશ માટે ચિંતાનો વિષય છે। આવી જમાતને ખુલ્લી પાડવાની જરૂર છે। આ જમાત આ પ્રકારની સિલેક્ટિવ કેમ છે? શું તેનાથી તેમના સેક્યુલરિઝમને કોઈ નુકસાન નથી થતું? શું આ તેમના સેક્યુલરિઝમનો આગળ વધારવાની ચીજ હતી? આ માટે જ સૌથી મોટો ખતરો નકાબ પહેરનારા લોકોથી છે।
मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो, मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह है, ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। तो બીજી તરફ કોંગ્રેસના ન્યાય અભિયાનને આડે હાથ લેતા વડાપ્રધાને ખાસ જણાવ્યું છે, કોંગ્રેસ સ્વીકાર છે 60 વર્ષમાં કંઈ નથી કર્યું। 60 વર્ષમાં શાસનમાં માત્ર અન્યાય। 1984ના શીખો હજુ ન્યાય માંગી રહ્યા છે। ટ્રિપલ તલાકની પીડિતાઓ ન્યાય માંગે છે। कांग्रेस का चला है, वो कह रहे हैं अब होगा न्याय। और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर साबित? इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। तो पीएम मोदीના ઇન્ટરવ્યુ પર વિપક્ષોનું શું કહેવું છે, શું પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે, આવું જોઈએ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला और लाख अखिलेश यादव व मायावती का गठबंधन हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। वो गठबंधन नहीं लठबंधन है, इसलिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फिर प्रचंड बहुमत आएगा। वहां प्रधानमंत्री जी खुद कुछ कर बैठे तो उचित, अरुणाचल के कई इलाकों से आपसपा विड्रॉ कर ले तो उचित। पीडीपी के साथ जब सरकार चला रहे थे तथाकथित आर्किटेक्ट राम माधव जी के मार्गदर्शन में, तो वहां आपसपा की रिव्यू की बात करें तो वो उचित। वो किसी जोन को लेस मिलिटराइज करें वो उचित। लेकिन दूसरा कोई अगर ये कहे कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बहाल करने के लिए रिव्यू के बाद हम ये कोशिशें करेंगे तो वो अनुचित। तो प्रधानमंत्री जी, ये दोयम दर्जे की राजनीति नहीं चलेगी, ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। सच को स्वीकार करिए और एक दूसरे के हम विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं, एक दूसरे के सुझाव भी मानिए।